क्वेश्चन दिया है वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस p इक्वल टू 0 exceeds the other root by 2, then the value of p is. तो सपोज इस इक्वेशन के रूट्स हम अज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पर रिलेशन दिया है वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2, यानी जो दोनों रूट्स का डिफरेंस है दैट इज अल्फा माइनस बीटा, इनका जो डिफरेंस दिया है वो है 2। नेक्स्ट जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस p इक्वल टू 0, अगर हम इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू है -4 and c is equal to p. So therefore we could say the sum of roots, that is alpha plus beta, is minus of b by a, that is minus of -4 by 1, which is equal to 4. Also हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से मिल सकता है, that is alpha into beta, which is obtained as c by a. अब c की वैल्यू है p, a is 1, so this is equal to p. So alpha into beta, alpha minus beta is 2, alpha plus beta is 4, and alpha into beta is p. Now we know the relation alpha plus beta the whole square minus alpha minus beta the whole square. This difference is equal to 4 alpha beta. अब यहाँ पे ये सब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर is equal to 4 times alpha beta is p. ये सिंप्लीफाई करने पर we have 16 minus 4 is equal to 4p, so 4p is equal to 12, so therefore the value of p is equal to 3. and अगर ऑप्शंस चेक करते हैं हम, तो इसका सही आंसर आता है option C. If the roots of the equation x square minus px plus q equal to 0 differ by unity, then which of the relations is true, right? Now differ by unity यानी उनका जो difference है वो 1 का है, तो इस equation के जो roots है उनका difference 1 है, so 1 is indicated by the word unity. So suppose हम roots ले लेते हैं alpha and say alpha plus 1. So let the roots of the given equation, let the roots of the given equation be alpha and say alpha plus 1. अब given equation consider करते हैं. So consider the given equation x square minus px plus q equal to 0. अब इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ ax square plus bx plus c equal to 0, and हम यहाँ से sum of roots ढूंढ सकते हैं. So therefore we could say the sum of roots, as we know, it is minus of b upon a. अब रूट्स है अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, so therefore we could say alpha plus 1 is equal to minus of b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x से आएगा minus p upon a यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट which is 1. So from here we have 2 alpha plus 1 is equal to p. यहाँ से हमें p की वैल्यू तो मिल गई, अब q की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से ढूंढ सकते हैं. Now we know that product of roots is given by c upon a.
So therefore alpha into alpha plus 1 is equal to, अब यहाँ c की वैल्यू है q and a is 1. So therefore we have alpha into alpha plus 1 is equal to q. अब हमें p and q का रिलेशन ढूंढना है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें, ये तीन ऑप्शन में तो p स्क्वायर टर्म्स है, तो ये वाला इक्वेशन हम स्क्वायर करके देखते हैं। ये जो p का जो हमें इक्वेशन मिला है, इसे हम स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। सो p इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1. सो देयरफॉर p स्क्वायर विल बी 2 अल्फा प्लस 1 द होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड एक्सपैंड करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1। अब इन दो टर्म्स में से वी कुड टेक 4 अल्फा कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस 1 प्लस 1, बट अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ये अगर हम ध्यान दें, it is actually q, right? So alpha and alpha plus 1, इसका प्रोडक्ट जो है that is equal to q, तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं q से। So what we have here is p square is equal to 4 times q plus 1। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, let's see which option we get। Yes, so p square is 4q plus 1. तो अगर हम इसका ऑप्शन चेक करें, so the correct answer is option A. If alpha and beta are the roots of the equation x square plus kx plus 12 equal to 0, such that alpha minus beta is equal to 1, find k. तो हमें जो इक्वेशन दिया है वो है x square प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसे जनरल फॉर्म के साथ, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन वी कुड से सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय माइनस ऑफ बी बाय ए, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ k अपॉन 1 विच इज इक्वल टू माइनस k, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय c अपॉन a। अब c की वैल्यू है यहाँ पर 12, a इज 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा इज 12, और हमें वैल्यू दी हुई है अल्फा माइनस बीटा की, एंड अल्फा माइनस बीटा इज 1, दिस इज गिवन टू अस। तो ये तीन टर्म्स को जो इक्वेशन रिलेट करता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर is equal to 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें मिली है माइनस के, सो माइनस के स्क्वायर माइनस डिफरेंस इज 1, तो यहाँ आएगा माइनस 1 स्क्वायर एंड 4 टाइम्स अल्फा बीटा ये है 12, सो वी हैव के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 48, तो यहाँ से हमें मिलता है k स्क्वायर इज इक्वल टू, now 48 plus 1 which gives us 49, so from here we have k is equal to plus or minus 7. So if we check the options, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन C। क्वेश्चन है, if alpha and 1 upon alpha are the roots of the equation 8x square minus 3x plus k equal to 0, then the value of k is। तो जो इक्वेशन दिया है वो है 8x square minus 3x plus k equal to 0,
और इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो है अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। अब अगर इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, so therefore we get a is equal to 8, b is equal to -3 and c is equal to k। और हमें k की वैल्यू चाहिए। नाउ हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन बाय c बाय a। अब यहाँ पर जो रूट्स है वो है अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, सो देयरफॉर वी कुड से अल्फा इनटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a, c यानी कि k, a की वैल्यू है 8, तो अल्फा गेट्स कैंसल्ड ओवर हियर, तो 8 अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं so we get k is equal to 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। The roots of the equation 3x square minus 14x plus k is equal to 0 will be reciprocals of each other if, अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू k है तो वो हमें ढूंढना है। अब जो इक्वेशन दिया है वो है 3x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे है माइनस 14x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b will be equal to minus 14 and c will be equal to k। and suppose इसके रूट्स हम अल्फा एंड बीटा लेते हैं। let अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation। अब यहाँ पे दिया है the roots will be reciprocals of each other, ये कंडीशन हमें दी हुई है, यानी अल्फा इज 1 अपॉन बीटा, ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो ये कंडीशन ट्रू होने के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। नाउ अगर अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 1। लेकिन हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज गिवन बाय c अपॉन a, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं c अपॉन a इज इक्वल टू 1। अब c की वैल्यू है k, a की वैल्यू है 3, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा k अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। और हम अगर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे आंसर आता है ऑप्शन सी, k is equal to 3। so please remember product of roots is equal to c by a and sum of roots अगर आपको याद हो it is minus of b by a, लेकिन यहाँ हमें प्रोडक्ट यूज करना है। सो अल्फा बीटा है c by a और अल्फा बीटा तो 1 है, करेक्ट। सो 1 इज इक्वल टू c by a, अब c है k और a की वैल्यू है 3, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। The condition that one root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is twice the other is। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो है ax square plus bx plus c equal to 0 और कंडीशन दिया है that one of the root is twice the other। तो सपोज एक रूट हम लेते हैं अल्फा, let one of the roots be alpha, so therefore the other root will be इसका डबल, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, so it will be 2 alpha। अब हमें a b c का रिलेशन ढूंढना है तो हम पहले सम ऑफ रूट्स ढूंढ लेते हैं।
Now we know that sum of roots is given by minus of b upon a. तो sum of roots यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा is minus of b by a. तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 times alpha is minus b by a. Next हम ढूंढते हैं product of roots. Let us find the product of roots. Now we know that the product of roots is given by c upon a. So therefore alpha into 2 alpha is equal to c upon a. तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर is equal to c by a. लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए उसमें कहीं पर भी अल्फा नहीं है, सब a b c है. सो वी हैव टू मेक अ सब्स्टिट्यूशन. देखिए अब यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल सकती है एज माइनस बी अपॉन 3a. ये जो वैल्यू है इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में. तो याद आएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर. अब अल्फा है माइनस बी अपॉन 3a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. दिस इज 2 टाइम्स, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 9 टाइम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a. सो देयरफॉर 2b स्क्वायर 9a स्क्वायर को उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो c बाय a इंटू 9a स्क्वायर. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 2b स्क्वायर इक्वल टू, अब एक a और यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा तो 9ac. सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac. देखते हैं ऐसा ऑप्शन है. 2b स्क्वायर इज 9ac. यस, सो वी हैव द आंसर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. यहाँ दिया है इफ द इक्वेशन b माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन हमें वैल्यू ढूंढनी है 2b की. अब इसे अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, so if we say comparing with the general form, that is ax square plus bx plus c equal to 0, तो हमें a की वैल्यू मिलती है b minus c, then capital B इसकी वैल्यू है c minus a, and capital C इसकी वैल्यू है a minus b. अब हमें कहा गया है that the roots are equal. So we say as the roots are equal, तो discriminant value यानी b square minus 4ac, this must be equal to 0. अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें. So we have c minus a the whole square minus 4 into b minus c into a minus b is equal to 0. अब इसमें से हमें 2b की वैल्यू ढूंढनी है. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये एक्सपांड करते हैं तो c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू, लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, b इंटू a, ये हो जाएगा ab, b इंटू माइनस b, that's minus b square, फिर आएगा minus ac and then आएगा plus bc is equal to 0. Further we have c square, ये a square को हम यहाँ लिख लेते हैं साथ में, minus 2ac, let us open the brackets, तो minus 4ab plus 4b square plus 4ac minus 4bc is equal to 0. Let us collect the square term. So c square plus a square
और ये है हमारा 4b²। अब AC वाले टर्म्स देखते हैं, 4AC minus 2AC, so that's positive 2AC. Then we have minus 4AB, ये वाला टर्म, एंड लास्ट में है हमारा minus 4BC is equal to 0। ये इनफैक्ट परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए इसका C² प्लस A²। अब इसे हम एक्चुअली लिख सकते हैं 2b the whole square, correct? Then plus 2 into A into C। Then यहाँ पे हम लिख सकते हैं plus 2 into A into 2b, लेकिन हमें माइनस चाहिए, राइट? तो यहाँ पे अगर हम माइनस 2b कंसिडर करते हैं, राइट, 2 into A into minus 2b, राइट, तो आ जाएगा minus 4AB प्लस 2 into, ये फिर से हम ले लेते हैं minus 2b into C is equal to 0। और अगर यहाँ पर भी हम माइनस साइन रखते हैं ब्रैकेट के अंदर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक्सपेंशन है C प्लस A minus 2b the whole square का, right, is equal to 0। So if we take the square root, so C plus A minus 2b is equal to 0। So therefore ये 2b इस तरफ ले लेते हैं, so 2b is equal to C plus A या A plus C। तो ऑप्शंस अगर हम चेक करते हैं तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन बी है C plus A। So 2b is equal to C plus A। For what values of m the equation x² minus 2mx plus 7m minus 12 equal to 0 has equal root। तो ये जो क्वेश्चन है ये नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंडेंट है, ये वाला क्वेश्चन रादर बेस्ड है ये। सो इसे हम जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलती है 1। The value for b is minus 2m and the value for c is 7m minus 12। अब हमें कहा गया है that the roots are equal। Now if the roots are equal then, या फिर हम कह सकते हैं for equal roots जो कंडीशन होती है वो है b² minus 4ac is equal to 0। That is the discriminant value is equal to 0। So therefore minus 2m² minus 4 times 1 into c है 7m minus 12 is equal to 0। अब proceeding further, ये आएगा 4m² minus 4 times 7m minus 12 is equal to 0। अब यहाँ पे we divide throughout by 4, तो ये 4 और ये 4 एलिमिनेट हो जाएंगे। So we'll have m² minus 7m minus 12 ये ब्रैकेट में is equal to 0। Proceeding further, we have m² minus 7m plus 12 is equal to 0। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला, तो इसके फैक्टर्स अगर हम ढूंढते हैं 12 के 4 and 3, so -4 -3 because हमें -7 चाहिए, so the factors would be m minus 4 m minus 3, ये दो फैक्टर्स होंगे is equal to 0। so if m minus 4 is 0, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलती है 4, और if m minus 3 is 0, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलती है 3। so m की जो वैल्यूज है वो है 3 and 4। अगर ऑप्शंस वेरीफाई करें
तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन दिया है इफ a is the arithmetic mean of the roots of the equation x square minus 2ax plus b equal to 0 and g is the geometric mean of the roots of the equation x square minus 2bx plus a square equal to 0, then a greater than g, a not equal to g, a equal to g या फिर none of these। तो सबसे पहला इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं x square minus 2ax plus b equal to 0 and suppose इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो हम लेते हैं as alpha and beta। So therefore the sum of roots यानी alpha plus beta will be minus of minus 2a upon 1, minus of coefficient of x upon coefficient of x square. So this is equal to 2a. Therefore जो arithmetic mean होगा इन roots का, so that will be alpha plus beta upon 2, that is 2a upon 2। तो arithmetic mean की वैल्यू आती है a। अब लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है x square minus 2bx plus a square। Let us write down the second equation, x square minus 2bx plus a square equal to 0। अब suppose इस इक्वेशन के हम रूट्स डिफाइन करते हैं as say alpha 1 and beta 1। अब इनका हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, that is product of alpha 1 and beta 1। Now we know that product of roots can be calculated as a square upon 1, the constant term upon coefficient of x square, यानी product of roots हमें मिला a square। Therefore g जो है वो इन roots का geometric mean है, that is g is equal to root of alpha 1 into beta 1, so that is equal to root of a square which is also equal to a। तो यहाँ पे arithmetic mean a मिल रहा है, यहाँ पे geometric mean a मिला, तो अगर हम options verify करें, so therefore we could say a is equal to g, which is option C। Question है if alpha and beta are the roots of 6x square minus 6x plus 1 equal to 0, then the value of, अभी बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, इसका वैल्यू हमें ऑब्टेन करना है। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो है 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सो देयरफॉर वी कुड ऑब्टेन द सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा will be minus of minus 6 upon 6, so that is equal to 1, and product of roots, that is alpha into beta, will be the constant term upon coefficient of x square, यानी 1 by 6। अब इन दोनों के हेल्प से हम ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढते हैं। तो वी हैव हाफ ब्रैकेट में a प्लस b times alpha plus c times alpha square plus d times alpha cube plus half second bracket में है a plus b into beta plus c into beta square plus d into beta cube। अब ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं। सो ये हाफ और ये हाफ चाहे तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, और ये बाकी के टर्म्स अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस a, दैट बिकम्स 2a, देन b टाइम्स अल्फा प्लस b टाइम्स बीटा। तो अगर हम b कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर c टर्म्स को ऐड करते हैं, c अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर है c बीटा स्क्वायर। अगेन इफ वी टेक c कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
एंड लास्ट में डी अल्फा क्यूब प्लस डी बीटा क्यूब. इफ यू टेक डी कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. प्रोसीडिंग फर्दर, ये हाफ एज इट इज, ये 2a एज इट इज. नाउ b इनटू, नाउ अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्टेन की है. अल्फा प्लस बीटा इज 1, तो यहाँ पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. प्लस c इनटू, यहाँ हम सिमेट्रिक रिलेशन यूज कर सकते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस d टाइम्स, यहाँ पर भी हम सिमेट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस कुड बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब सब्स्टिट्यूशन सिर्फ रह जाते हैं. सो ये हाफ ब्रैकेट में 2a, दिस विल बी b प्लस c इंटू, ना अल्फा प्लस बीटा, ये है 1 का स्क्वायर, राइट, माइनस 2 टाइम्स ना अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट हमें मिला 1/6 प्लस d इंटू ना अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1, तो ये आएगा 1 क्यूब. 3 टाइम्स अल्फा बीटा इज 1/6 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 1. So let us simplify this. देखते हैं क्या आता है. ये सिंप्लीफाई करने पर we have half ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस c इंटू, ये आ जाएगा 1 माइनस, दिस बिकम्स 1/3 प्लस d इंटू 1 क्यूब, दैट इज 1 माइनस 3 इंटू 1/6, दैट इज हाफ. So next step is half in brackets 2a plus b plus, now 1 minus 1/3 is 2/3, तो ये हो जाएगा 2c upon 3 plus, now 1 minus half is half into d, तो इसे हम लिख सकते हैं as d/2. Now if you open the brackets, ये अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा half into 2a plus half into b plus half into 2c upon 3 plus half into d upon 2. तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे रह जाता है a plus this becomes b upon 2, this 2 gets cancelled, तो यहाँ आ जाता है c upon 3 एंड यहाँ पे d इंटू 1, दैट इज d, और नीचे 2 2s ये आ जाता है 4. तो अगर हम ऑप्शंस मैच करते हैं तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी. तो यहाँ हमें सिर्फ 1 लिखना होगा, a upon 1. So this matches with option B. So the correct answer is option B.